And a very good morning to one and all who has joined in today. I, Lavina Sachdev, very warmly welcome you all on the behalf of the whole Equity Wala team and the Next Big Thing people who have invited you here for this webinar on learnings from COVID affected families. किसी ने बहुत सही कहा है that pain always teaches you a lot more than the happy moments. It teaches you how to survive better. It teaches you how to be your better self for your family's betterment or your own betterment. कोविड का एक पूरा टाइम अभी 1 साल या 1.5 ईयर से ऊपर हम सब इस पेंडेमिक के अंदर है. ऐसी बहुत सारी चीजें हम सभी के साथ हुई, हम सभी ने सुनी या फिर हमारे किसी क्लोज वंस को हमने खोया. और ऐसी बहुत सारी कहानियां थी जहां से हमने काफी सारी चीजें सीखी. It can be medical terms पे, it can be financial terms पे, but आज हम importance देंगे financial awareness को during this time of pandemic, because we believe that it is very important. पैसा होना या ना होना, but manage करना आना एक बहुत ही important skill है. And today we are going to present 10 lives cases of people, of families, of real pain, real sufferings, रियल सिचुएशंस जिससे हम चाहते हैं कि आप completely सीखें. And that is why while inviting you all we mentioned that please sit with your families. So I, Lavina Sachdev, very warmly request you once again. अभी भी webinar start होने को time है. Like we will be going through a brief introduction before. You can call all of your family members to sit with you today and understand the importance of financial awareness. So on that very note, I now hand over the session ahead to Mr. Hitesh Mali sir to tell us more about today's session. Good morning to all of you and warm welcome to our Sunday morning webinar, a 10 story of a COVID suffered families. मेरा नाम हितेश माली है. I am into this field since last 26 years, doing lot of financial education activity across India. Before lockdown, I traveled to a lot many cities for the seminar and the workshop. And after lockdown, we started a webinar and I met number of people across India, not in India, across the globe. That is all about my work and my activity. In last 10-15 years, I was mainly focusing on a India land of opportunity. कि आप इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, पीएमएस थ्रू पैसा लगाओ, आपका पैसा कहीं ना कहीं अच्छा ये देश अपॉर्चुनिटी देगा, and you learn or you earn like anything. And now result is in your front of you. Market is doing extremely well. Sensex is all about a historical high, Nifty is all about a historical high, and each and every investor is quite in a good mood irrespective of a COVID situation. So आज आप देखो कि मैंने पिछले 25 साल में क्या किया था. अगर आप देखने जाओगे, मैं आपको प्रेजेंटेशन कुछ दिखा रहा हूं on a easiest way. See, the most important part is 10 families, unlimited pain, and 10 real story. That is what today we are going to discuss in next 45 to 50 minutes. मैंने आज तक इतने सारे बहुत सारे जो भी इवेंट करके रखा है. By the way, my disclaimer is very clear. This presentation is information purpose only, and of course today is not about any market discussion, any fund discussion, as a stock discussion. No advice, no tip. This is all about a pure learning. So the most important thing in my huge experience in this financial field, the serious problem is that everyone is focusing on a बाजार में कितना पैसा बनेगा. इवन मैं आप लोगों को एक साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आज भी जब मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरे पास 100 से ऊपर क्वेश्चंस अभी आ चुके हैं. आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू मार्केट क्या लगता है, विच फंड टू इन्वेस्ट, विच स्टॉक टू बाय, मार्केट कब टूटेगा, विच कैटेगरी टू इन्वेस्ट. Now this is not every time the discussion is all about a market. कोविड से हमने बहुत सारी चीजों को सीखने का मिला है.
मुझे इतना पेन हो रहा है आज की इवेंट करने में। आज अगर जो लोग मुझे जानते हैं, अगर उन्होंने मुझे 10 साल में कभी भी सुना होगा, तो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक पर्सन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। अगर आपने 26,000 के सेंसेक्स पर भी मुझे सुना होगा, लास्ट ईयर जब बाजार टूटा था, वो दिन भी मेरा एनर्जी बहुत पावरफुल था। बट टुडे आई एम नर्वस, completely nervous. I am in a painful situation. And the reason is, as a smart investor, we are not focusing on a money management. We are not focusing on a financial education. See, आज के इवेंट के लिए भी मुझे लोगों को इनवाइट करना पड़ रहा है, लोगों को 4 बार कॉल करके पूछना पड़ता है, प्लीज आप फैमिली के साथ में बैठना। This is the most painful thing. Why we are talking every time about the profit, 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 my dear friend? We have to focus on a planning also. And planning, which type of planning? मैंने मेरी जिंदगी में मेरे नजदीक के लोगों को जो जाते हुए नहीं देखा है। ये कोविड में मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त थे, या तो कोई रिलेटिव है या तो फिर क्लाइंट है, उनको जाते हुए देखा है। उनके बाद जो उनकी फैमिली की सिचुएशन हुई, that is the most painful. First news already a painful, but the second situation, and that is all about a stress, is super duper painful, beyond imagination, beyond imagination. So आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। Today session is not about any learning, it's all about anything related to market learning. Today is all about our financial learning. तो आज जो भी 10 फैमिली की मैं बात करने जा रहा हूं, मैंने उनके नाम बदल दिया है, मैंने उनके सिटीज भी बदल दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो 10 लोग चले गए, वो हमें जिंदगी में कुछ ज्यादा सिखा कर गए हैं। अगले 10, 15, 20, 25 साल हम जब तक रहेंगे, तब तक हम एक नई सोच के ऊपर ये 10 लोगों ने मजबूर कर दिया है। मुझे पहली बार जिंदगी में ऐसा एहसास हुआ है कि बाजार की बात मैं क्यों करता हूं एवरी टाइम। दिस इज द टाइम माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट इट टू शेयर माय लर्निंग विथ ऑल ऑफ यू, एंड दैट इज द रीजन कि आज का इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं। तो जो भी 10 लोगों की मैं केस स्टडी यहां पर रखने जा रहा हूं, उनके लिए मैं छोटा सा 1 मिनट का सिर्फ हम लोग साइलेंस रखते हैं कि इनकी वजह से, ऑफ कोर्स ये पेनफुल है, बट इनकी वजह से आज हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिल रही है। जो बाजार ने मुझे 26 साल में नहीं सिखाया है, ये लोगों ने मुझे सिखाया। थैंक्स टू ऑल द फैमिली कि जिनके साथ ये जब हम लोग चर्चा भी किए, और वहां से हमें कुछ न कुछ लर्निंग भी मिल गई। सो लेट्स स्टार्ट विद द 10 केस स्टडी, बट उससे पहले माहौल समझ रहे थे। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब पहला लॉकडाउन लगा पिछले साल, तब आप देखो फर्स्ट लॉकडाउन 23 मार्च 2020, 8 बजे रात को मोदी जी आए और उन्होंने लॉकडाउन की अनाउंसमेंट कर दी। दूसरे दिन से सब कुछ बंद हो गया। जिंदगी में पहली बार हमने लॉकडाउन वर्ड सुना, और वी ऑल आर इन अ सुपर डुपर पेन, एंड द पेन वाज, मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा। टेरिफिक पेनफुल मंथ इन टर्म्स ऑफ ए इकोनॉमी लॉस। तब किसी को भी टेंशन नहीं था, मेडिकल किसी को टेंशन नहीं था। मुझे एग्जैक्टली याद है कि हम लोगों ने अच्छी तरह से दिए जलाए थे, थाली बजाई थी, सब कुछ कर लिया था, तब कोई हमें टेंशन नहीं था पहले वाले लॉकडाउन में। उसके बाद जो दूसरा जो वेव आया कोविड का, पहले में हम लोग अच्छी तरह से निकल गए, और जो दूसरी वेव आई फ्रॉम द अप्रैल 2021, वो मुझे लग रहा है पहले वाले में इकोनॉमी की चिंता थी, दूसरे वाले में जो सबसे पेनफुल घटना हुई, आप देखो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, आप हर जगह पर जाओ तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे। पहली बार लोगों को इकोनॉमी की चिंता नहीं हो रही थी। बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्तों कि दूसरी वेव में हमें पेन था हमारी जान का,
हमारे नियर और डियर वन की हमें चिंता लगी रहती थी, हमारे स्टाफ की, हमारे टीम मेंबर की, हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं उनकी चिंता लगी रहती थी। वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल टाइम सेकेंड वेव। पहले वेव में डर डर था, बट वो जॉब लॉस, इकोनॉमी की चिंता थी। दूसरे वेव में इस सुपर डुपर, और इसमें काफी लोगों की जान गई। और पहली बार लर्निंग क्या मिला कि सेकेंड वेव में जान ऐसी गई कि सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये समझना कि पहला वेव आया था जब इकोनॉमी की चिंता लग रही थी, तब लोगों को डाउट था कि लोअर मिडल और आपसे उससे भी नीचे जो पुअर कैटेगरी है उनको काफी कुछ दिक्कतें होगी। बट जब सेकंड वेव आई, लोगों की जान जाने लगी, तब उसमें अमीर गरीब कोई डिफरेंस नहीं रहा। पैसा आपके पास बहुत है या पैसा आपके पास नहीं है, दोनों के लिए चिंता वही थी, दोनों के लिए पेन इक्वल लेवल था। पहली बार जिंदगी में समझ में आया कि आपके घर के बाहर मर्सिडीज भी खड़ा है ना, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। पहली बार जिंदगी में समझ में आया कि लाइफ को कैसे प्लान करना चाहिए। और ऐसे में हमने बहुत सारे लोगों को जाते हुए देख लिया ना। और एक लर्निंग इसमें क्या मिल गई कि मेजोरिटी लोगों को, जिसको भी हुआ ये चीज और जहां जहां ये गई, इन बिटवीन बाकी के लोग कहां पर बिजी थे, ये चीज के पीछे सब लोग भाग रहे थे कि बस बाजार अच्छा जा रहा है। सी एक साइड हमारे पास पेन था, और ये पेन था हेल्थ का पेन था, लोगों की जान जा रही थी उसका पेन था, बट उसके बीच में बाजार अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा था। और मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि हम ये चीज के पीछे इतने बिजी हो गए कि हम ये इनको तो भूल ही गए कि बॉस मेरी भी जान जा सकती है। एंड यू नो द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस सेकंड वेव, मेजोरिटी, मैंने तो जो मेरे एक्सपीरियंस किए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मेजोरिटी लोगों को जो मैंने जाते हुए देखा है, ऑलवेज उन्होंने सोचा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। नाउ दीज आर द मोस्ट सीरियस मैटर। इवन आज भी मुझे पक्का मालूम है, मैं आपके साथ जब ये बात कर रहा हूं, हाथ जोड़ के बात कर रहा हूं, मुझे 100% मालूम है कि आप जब बैठ के सुन रहे होंगे तो आप भी वही सुन रहे हो कि 10 लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होगा। डोंट डू दिस माय डियर फ्रेंड। मैं रिक्वेस्ट आपको कर रहा हूं कि जितनी अच्छी प्लानिंग करेंगे ना, क्या पूरी जिंदगी सेंसेक्स के पीछे ही भागेंगे, या हमारे पीछे भी कोई भाग रहा है उसको भी देखेंगे। ये मैंने पैसा देखने के बाद, पेन देखने के बाद मैं आपके साथ ये सब बात कर रहा हूं। क्या अभी भी वही चीज में रहोगे कि जब एडवाइजर को मिलते हो वही बात करोगे कि अभी 15% मिलेगा, प्रॉफिट कब बोलूं? किसके पीछे भागना है और आपके पीछे कौन भाग रहा है, ये दो चीज का अंतर समझ लो प्लीज माय डियर फ्रेंड। ये बार आप देखो, पहले कोविड में लोग बोल रहे थे कि सिर्फ सीनियर सिटीजन की जान को खतरा है, बट दूसरे वेव में हमने क्या देखा, 30 साल का लड़का यार, 35 साल का, अभी अभी जिसका बच्चा छोटा है, वो भी हमें छोड़कर चला गए। उनको भी लग रहा था, बॉस पहले तो लोग समझा रहे थे कि ये जो यंगस्टर है उनकी इम्यूनिटी सिस्टम पावरफुल है तो उनको कुछ नहीं होगा। बट आप देखो, उम्र की कोई सीमा नहीं रही, पैसे की कोई सीमा नहीं रही। आलीशान बंगलों में रहने वाला आदमी पूछ रहा था कि प्लीज मुझे एक बेड कहीं पर मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर हम लोग सिर्फ पैसे की बात करेंगे, देन माय डियर फ्रेंड वी आर इन अ रॉन्ग ट्रैक। सेकंड एक चीज समझना, ये जो महामारी आई है, मेरे जितने भी जो जानकारी है, ऐसा 100 साल में कुछ ना कुछ होता ही है। बट ये 100 साल में जब ऐसी महामारी आती है, तब हमारे संस्कार में, हमारी हैबिट में, हमारी सोच में परिवर्तन आना चाहिए। सी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, ये सब घटना आज मुझे क्यों बात करनी पड़ी, क्योंकि सालों से हमारी परिवर्तन, हमारे हमारे लर्निंग में क्या आ रहा है। हमें बहुत साल पहले सिखाया गया था कि घर की बहू बेटियों को फाइनेंस फील्ड में नट डालो, बहू बेटियों को घर संभालने दो, उनको पैसा देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा हमें सिखाया गया था। बच्चों को अभी पढ़ाई पे ध्यान में दो, उनको ये सब चीज में मैटर में नहीं जाना चाहिए। ये हमारे पुराने संस्कार थे। आई एम नॉट सेइंग कि गलत संस्कार थे, बट ये जो 100 साल की महामारी आई है, तो अगले 100 साल के हमारे थॉट प्रोसीजर में कुछ चेंजेस आने चाहिए। आज घर की बहू बेटियों को भी ये चीज मालूम होनी चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ है। आपके बच्चों लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ है। दैट इज ऑल अबाउट ए न्यू लर्निंग। ये हैबिट बदलने की बात है, और ये 1 साल के लिए नहीं है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं।
आज मुझे तो पक्का, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मे बी आज मेरा लास्ट डे हो सकता है, या 15-25 दिन भी हो सकता है, या 25 साल भी हो सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है. What I learned this painful situation कि everything is sharing information with your family member. मैं 10 लोगों की स्टोरी आपको बताऊंगा. See, इवन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या रहा, एवरी टाइम हमारे हैबिट क्या थी, मई अप्रैल में लोग बोलते थे इससे पेनफुल में कोई आपके साथ बात नहीं कर सकता हूं. एक्चुअल में देखने जाओ तो मुझे शर्म आती है सब टॉपिक के बारे में बात करने के भी, कि हमारे 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी. और ये आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं सर, मुझे खुद को रियलाइज हो रहा है कि दीज आर माय बिगेस्ट मिस्टेक, कि मैंने भी 25 साल से सिर्फ बाजार का ही बात किया, जबकि मुझे लोगों को ये चीज के ऊपर भी कुछ समझाना था. सी, आज तक वैकेशन में हमने क्या किया है, सिर्फ पूछते रहे कि गोवा में होटल लीला में कमरा मिल जाएगा क्या, क्या हमें मैरियट में बुकिंग मिल जाएगा. एक्चुअल में ये बार के वैकेशन में जिंदगी में पहली बार पूछना पड़ रहा है कि जसलोक में मुझे रूम मिलेगा क्या, मुझे केईएम हॉस्पिटल में रूम मिलेगा क्या. अभी भी हमारे चीज में, हमारी हैबिट में, फाइनेंशियल एजुकेशन में फर्क नहीं आया ना, देन आई थिंक वी आर ऑन अ रॉन्ग ट्रेन. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा लर्निंग आपको बोल रहा हूं, मैं कोई भी आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूं. मेरे एक्सपीरियंस, मैंने जो 10 फैमिली का पेन देखा है उसके लिए आपको सजाग कर रहा हूं कि दिस इज द परफेक्ट टाइम, कि जिंदगी में बच्चों को सिर्फ होटल बुकिंग मत सिखाओ, उनको परेशानी आएगी ना उसके साथ फाइट करना भी सिखाओ. इवन आप देखो पेन कहां से स्टार्ट होता है, पेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये 10 फैमिली का कॉमन लर्निंग क्या रहा, कॉमन मेरी लर्निंग क्या रहा, ये हर एक फैमिली को मैं जानता हूं. कॉमन लर्निंग क्या रहा कि आपको 100% जब अभी इतना सुन रहे हो, आपको डेफिनेटली ऐसा लग रहा होगा कि हितेश जो बात कर रहा है, जिनके पास पैसा नहीं था ने पक्का उनको प्रॉब्लम आई होगी. नो, ये केस स्टडी 10 में से 9 केस ऐसे है, 9 केसेस ऐसे है कि जहां पे तो भर भर के पैसा था, उनको प्रॉब्लम आई है. सिर्फ मैंने एक ही केस ऐसा रखा था कि जहां पर पैसों की कुछ प्रॉब्लम थी. तो पहले एक चीज क्लियर कर देना कि दिस इज नॉट अबाउट ए रिच गेम और ए पुअर गेम, इट्स ऑल अबाउट ए मनी गेम. और इसमें अगर आपने कोई बदलाव नहीं किया तो बहुत ज्यादा इश्यू हो जाएगा. हमने कभी नहीं सोचा था कि जो मेरा मेन आदमी है वो अगर नहीं रहा तो क्या होगा. और उससे भी ये लाइन तो आप लिख के रखना, मेजोरिटी में किसी को भी मिल रहा हूं ना, सबके अंदर ये कॉन्फिडेंस भर भर के है, मुझे कुछ भी नहीं होगा. बस ये आज भी कॉन्फिडेंस है. तीसरे वेव की भी अगर गवर्नमेंट बात कर रहे हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा, बट इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, कॉन्फिडेंस में मत रहो, बट ऐसी चीज मत किया करो. हाँ, पहले प्लानिंग कर लो, अच्छी प्लानिंग कर लो, फिर बोलो मुझे कुछ नहीं होगा तो चलेगा. कि कुछ हो भी गया तो आपकी फैमिली अच्छी तरह से पैसे को मैनेज कर पाएंगे. इवन मैंने क्या देखा है मालूम है, मैंने हर एक फैमिली को पूछा क्या आपको मालूम है कि आपके जो फादर या हस्बैंड एक्सपायर हो गए, आपके रिलेटिव कौन है. मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया यस हमें मालूम है. मैंने उनको पूछा कि आपके पापा अभी अभी एक्सपायर हो गए, बेटा आपको मालूम है पापा की सबसे पॉपुलर दुकान कौन सी थी. तो बोल रहे थे पापा है ना, पापा का सिलेक्शन था मार्क एंड स्पेंसर, वो वहां से ही खरीदते थे. बेटी को वो भी मालूम था. उनकी वाइफ को मैंने पूछा आपके हस्बैंड को क्या पसंद आ रहा था, तो बोले आजकल तो पिछले 18 महीने से लॉकडाउन में नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज जरूर देखते थे, अमेजॉन प्राइम पे ये सर वो बीवी को पक्का मालूम था. जिसको बंदा एक्सपायर हो गया उनके फादर मदर को मैंने पूछा कि अंकल आपको मालूम है आपके फैमिली डॉक्टर क्या है. बोले यस मेरे बेटे ने मेरी पहचान करवा के रखी है. मैंने उनको पूछा, उनके बच्चों को पूछा कि पापा को कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद थी ऑर्डर. तो बोले पापा पर्टिकुलर मिर्च मसाला में से ये चीज तो जरूर ऑर्डर करते थे, पापा को ये डिश बहुत पसंद थी, बेटे को ये भी मालूम था, बेटी को ये भी मालूम था. हमने उनको पूछा कि उनके अच्छे दोस्त कौन है, तो उन्होंने ये भी बताया. बिलीव मी, ये चेक करना आपके बच्चों के साथ. अभी मैंने उनको जब पूछा कि आपके पापा के बेस्ट दोस्त कौन है, मम्मी का दोस्त कौन है, तो बोले ऑफिस में ये है, आपके घर पे ये है, सराउंडेड लोग हैं. उनको सब कुछ मालूम है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग. बट यू नो वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल, जब मैंने उनको पूछा कि बेटा आपका इंश्योरेंस एजेंट कौन है पापा का, बेटा आपका शेयर ब्रोकर कौन है,
बेटी को मैंने पूछा, उनकी वाइफ को पूछा कि आपका म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। 90%, ये जो 10 केस है उसमें से 9 केसेस में उनको मालूम नहीं था कि पापा का फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है, शेयर के अकाउंट कहां पर है। दिस इज द वर्स्ट थिंग इन माई लाइफ आई हैव सीन। फूड कहां से मंगवाते हो मालूम है वाइफ को, नेटफ्लिक्स पे क्या देखते हैं वाइफ को मालूम है, बट ब्रोकिंग के कितने अकाउंट है वो वाइफ को नहीं मालूम है। बॉस एक जगह पर तो मैंने केस देखा, वाइफ प्राउड से बोल रही थी कि हस्बैंड अभी तो हॉस्पिटलाइज है, ऑक्सीजन है, तो अभी वहां पर वो बैठ के अभी ट्रेडिंग कर रहा है। मालूम है वो केस में क्या हुआ है? वो तो ट्रेडिंग कर रहे थे, सडनली ही डाइड, और उनका जो भी पोजीशन था वो ब्रोकर ने काट दिया। फाइनली द लॉस वाज समथिंग लाइक 10 to 12 लाख। दीज आर मोस्ट सीरियस मैटर। आज तक क्यों हम लोगों ने ये चीज क्यों नहीं बताई है? आप लिखो पेपर पर। अब अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मेरा वेबिनार आज का सुनना छोड़ दो। इफ यू आर आई एम ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। पढ़े, मैंने 10 फैमिली को मेरे नजर के सामने देखा। जब ये 10 फैमिली के साथ में बैठ के उनको आगे की गाइड करता हूं तो मैं काफी बार रात को सो नहीं सकता हूं कि ये पापा ने इतने पैसे कमा के अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को कुछ भी बोलकर गए होते तो आज ये स्ट्रेस तो नहीं आता। पैसा है, आई एम नॉट सेइंग पैसा नहीं है, पैसा तो था, पर नींद नहीं आ रही है फैमिली को। दूसरा, मैंने सबसे बड़ा लर्निंग क्या देखा कि ये 10 के 10 फैमिली में हुआ क्या कोविड में, बहुत ध्यान से समझना। कोई भी घर का मेन आदमी एक्सपायर हो गया और सडन हो गया, किसी को मालूम नहीं, 4-5 दिन में सब कुछ हो गया। नाउ सीरियस मैटर क्या रही कि एग्जैक्टली कुछ होने के बाद 2-3 दिन में, घर पे कोई रिलेटिव तो आ नहीं सकते। पहले तो क्या था, लॉकडाउन के पहले आपके घर पे रिलेटिव 1 आध महीना घर भरा भरा रहता था। ये बार तो ऐसा था कि अगर आदमी एक्सपायर हो जाता है तो उसके फादर मदर भी दूसरे सिटी से ट्रैवल करके नहीं आ पाए, उनके घर वाले भी। तो घर पे क्या नहीं, सिर्फ फैमिली मेंबर रहे, बिकॉज कोविड किसी को अलाउड नहीं कर रहा था ना। जो दिन एक्सपायर हो गए, और जनरली हमारी संस्कृति में क्या है, बहुत सारी पूजा और ये सब होती है 1-2 महीने तक। ये बार कुछ नहीं था, तो फैमिली ने भी क्या किया, जैसे ही कुछ हुआ शाम को या दोपहर से दूसरे दिन के बाद उन्होंने सब बुक्स देखना चालू कर दिया कि हस्बैंड के क्या क्या होना चाहिए, फादर का क्या क्या होना चाहिए। एंड देन द पेन स्टार्ट, my dear friend, my once again request to all of you, पापा को क्या पसंद है ने, उससे जगह पापा को कितने एडवाइजर है ने, वो प्लीज पहचान करा देना प्लीज। और अभी उसमें भी मत सोचना कि मुझे नहीं होने वाला और मेरे पास तो अभी भी टाइम है, 2-4 साल में करवा लूंगा। ऐसे ही मैं 10 फैमिली के आपके सामने बात कर रहा हूं। सी, हमने एडवाइजर को मिला तो क्या पूछा ऑलवेज, पैसा कितना बनेगा, कौन से फंड में डालना चाहिए, कौन से स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी। पर कभी भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया कि बॉस मैं नहीं रहूं तो मेरी वाइफ को ये नंबर पे कॉल करना, मेरे बच्चों को ये नंबर पे कॉल करना, मेरे फादर को ये नंबर पे कॉल करना। हैव वी एवर डिस्कस दिस थिंग? बॉस मैं बोल रहा हूं कि आज तक आप लोगों ने बोला है कि बाजार में लॉस होता है तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर की वजह से होता है। मैं चलो एग्री करता हूं, बट पहली बार मैं ऐसे भी बोलना चाहता हूं कि आपकी भी तो गलती हुई है सर। आपने भी, आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, एडवाइजर, जो भी जिसके पास इंश्योरेंस खरीदा, बॉस मैंने ऐसे केसेस देखे कि रात को 12 बजे उसको एडमिट करते हॉस्पिटल में, और इसकी बीवी ढूंढने में लगी रहती है, हस्बैंड को नहीं देखती है, वो ढूंढने में लगी रहती है कि काश हमारे पास, वो बोल तो रहे थे कि मेडिक्लेम है, बट कहां होगा, किसके पास होगा। सी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मैं आपको एक और मैसेज दे देता हूं, अगले 10-15 साल में इकोनॉमी की चिंता मत करना, बाजार की चिंता मत करना। डेटा के हिसाब से अगले 15-20-25 साल में इंडिया में प्रॉस्पेरिटी बढ़ने वाली है। जो भी लोग यहां पे सुन रहे हैं, मैं आपको एक वादे के साथ बोल सकता हूं कि 15-20 साल में आपके घर में पैसों की बढ़ोतरी होगी, आपके घर में समृद्धि आएगी। अभी सिर्फ आपको ढूंढना है कि सुख शांति में कहां से लाऊंगा पैसे की 15-25 साल में, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो आपसे ज्यादा कमा लेगी। लिख के रखना है, भारत देश है, लिख के रखना मेरे एक एक शब्द को, कि हर एक लोग ज्यादा पैसे वाले बनेंगे अगले 25 साल में। समृद्धि आएगी, सिर्फ सुख शांति ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है।
आपकी जिम्मेदारी। नाउ लुक एट दिस डेटा। हम लोग जब भी ये बात करते हैं कि सर ये सब पूरी एसेट का जो एलोकेशन रहता है, आज इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर है आपके पास, इतने सारे, आपने क्या क्या कहां पर क्या खरीद के रखा है, कभी भी आपने लिखा है? ये होमवर्क करके रखा है? क्या आपने कभी भी रियल एस्टेट खरीदा है, गोल्ड खरीदा है? बस दो चार केसेस में लॉकर की चाबी नहीं मिल रही है। कौन से बैंक में लॉकर है ना, वो नहीं मिल रहा है। बोले लॉकर पक्का था उनका, वो रखते थे पैसा कहीं ना कहीं, लॉकर नहीं मिल रहा है। क्या करोगे? कौन से गूगल पे सर्च मारोगे लॉकर ढूंढने के लिए? कितनी बैंक में ट्रैवल करोगे? कहां कहां पे जाओगे? समझ जाओ अभी भी मैं बोल रहा हूं। और जिंदगी का मुझे नहीं होगा ने, वो प्लीज वो आपका जो माइंड है ने वो निकाल दो। हाँ, ऐसे माइंड बना लो कि मुझे कुछ होगा या नहीं भी होगा, मेरे फैमिली को कुछ नहीं होगा। दैट इज द गुड स्पिरिट। यस, वेलकम टू दिस स्पिरिट कि मैंने मेरे फैमिली को सब कुछ बता दिया है। चलो 10 केस स्टडी बात कर लेते, 10 केस स्टडी बात कर लेते। और एक चीज समझना सर, कि आपका छोटा बेटा जोमेटो का लॉगिन करके अगर ऑर्डर कर सकता है, आपका छोटी बेटी नेटफ्लिक्स का 699 कैसे पे करना है उसको समझ में आता है, तो क्या वो बेटी को आपका मेडिक्लेम का प्रीमियम भरना ऑनलाइन नहीं समझ में आएगा? ये आपकी गलत फहमी थी कि बच्चों को ये सब चीज समझ में नहीं आएगी। वो आपकी गलत फहमी थी कि बहू बेटियों को आपने माँ बेटी को सिखाया नहीं आपने, क्योंकि हमें पहले दिन से बताया गया था कि नहीं, ये तो मैन डोमिनेटेड सेगमेंट है, डोंट डू दिस। वो पहले के 100 साल थे, सही थे, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहता, बट अगले 100 साल, अगले 50 साल आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में कुछ न कुछ अच्छी चीज हो जाए। पेन के बाद भी वो लोग अगर स्ट्रेस फ्री रहे, दैट इज द माय मैसेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द 10th स्टडी। 10 केस मैं आपके सामने रख रहा हूं, हर एक का लर्निंग है, आपको लिख के तो लिख के रखना। मैं रिपीट बोल रहा हूं कि रियल केस स्टडी है। मैं किसी को भी इमोशन को, क्योंकि जो लोग गए उनकी इमोशन को भी मैं हर्ट करना नहीं चाहता हूं, मैं आप लोगों की इमोशन को भी हर्ट करना नहीं चाहता हूं। मैं तो इवन ये 10 लोगों का शुक्रगुजार हूं जहीं पर भी बैठे हैं। प्लीज अगर उनको भी, अगर कहीं पर भी अगर वो लोग 10 लोग सुन रहे, तो मैं उनको भी हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपकी वजह से मैं कुछ सीखा, और मेरी वजह से आज 5000 इन्वेस्टर, मुझे लगता है 5000 से ऊपर अभी तो हो गए, वो सबको कोई अच्छी लर्निंग मिल रही है। दैट इज द, तो 10 लोगों की जान गई, बट ये 10 लोगों ने हमें एक जिंदगी दी है, एक जिंदगी का सोचने का नया एक नया नजरिया दे दिया है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सी पहला केस, हस्बैंड वाइफ, एक डॉटर, और उनका अभी अभी शादी हुआ है। बहुत ध्यान से समझना है, केस को ध्यान से समझना, तो आपको क्या करना है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। हस्बैंड की एज थी इसमें 55 इयर्स की, वाइफ, डॉटर जस्ट मैरिड 1 year बिफोर, एंड सन इन लॉ। ये 4 लोगों का फैमिली था। अचानक से ये हस्बैंड की डेथ हुई एट एज ऑफ 55-56। अभी हुआ क्या, उनके डिमेट के अकाउंट थे, स्टॉक के अकाउंट थे। नाउ स्टॉक के जो भी हुआ, 2 अकाउंट थे। जनरली आप देखना कैसे अकाउंट होते, हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड, ऐसे 2 अकाउंट डिमेट के मेजोरिटी फैमिली में रहेंगे, इनके पास भी था। नाउ ट्रेडिशनली क्या होना चाहिए कि हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो जो भी हस्बैंड का पर्टिकुलर यहां पर कुछ स्टॉक था 3.5 करोड़ का, तो जो 3.5 करोड़ का डिमेट का स्टॉक था, वो शिफ्ट कहां पर पहले होना चाहिए, वाइफ के अकाउंट में। एक क्लियर है, क्योंकि हस्बैंड की अगर मालिकी नहीं रही तो ऑटोमेटिकली ये मालिकी जाएगी फॉर द वाइफ अकाउंट। बट एक्चुअली देखना है, हमारा हमारा ट्रेडिशन देखना, बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, तो फैमिली में अचानक लोग वाइफ को एकदम पेनफुल सिचुएशन में देखते हैं, और पहले 15-20 दिन उसको बोलते हैं कि नहीं, ये इसको पेन में है ना, अभी कहीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इन बिटवीन व्हाट दे डिड, कि उनका जो सन इन लॉ था, उन्होंने बोला कि यार एक काम करो ना, कि अभी ये पूरा ऐसे भी अभी जो ये आपका 2-3 करोड़ का जो स्टॉक है, वो आप मम्मी के नाम पे स्टिप करते हो, इससे अच्छा तो फ्यूचर में तो डॉटर के पास ही जाने वाला है। एंड फाइनली वो
अकाउंट हो गया वाइफ की जगह पर डॉटर और सन लो के नाम पर। और ये सब सिचुएशन में देखना, जो एडवाइजर होता है, जो सब ब्रोकर होता है या तो ब्रोकर होता है, उनके लिए भी परेशानी क्या होती है कि वो कस्टमर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द अननेसेसरी डिस्प्यूट। नाउ एग्जैक्टली जब ये घटना बनी, ये सब पूरा अकाउंट खुल गया, शिफ्ट हो गया, और जब 3 महीने के बाद जब वो वाइफ कंफर्टेबल हो गई, वाइफ वो एडवाइजर की ऑफिस में आकर बैठी, और जब वाइफ ऑफिस में आकर बैठी तब वाइफ ने बोला कि यार ये आपने किया है नहीं, वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने ही भूल गई थी, मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड ने आपको बताया होगा, पर बोले मेरी बेटी का शादी का 1 साल हुआ है, बट मेरी बेटी और मेरे सन इन लॉ के बीच में अभी इतना अच्छा मनमेल नहीं बन रहा है। अभी उनका सी इज नॉट कंफर्टेबल, वो इंदौर में जहां पर रहती है, सी इज नॉट कंफर्टेबल, तो वहां पर कहीं ना कहीं भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं फ्यूचर में। नाउ सिंपल लर्निंग क्या है कि आप पहले दिन से ये पूरा प्लानिंग क्यों नहीं कर लेते हो कि अगर वाइफ की भी एज आ जाए 50 साल की, तो वाइफ की 50 साल की एज मीन अभी भी वो तो 20 30 40 20 रह सकते, दैट इज नॉट द इश्यू। तो ऑलवेज प्रॉपर प्लान करो, नॉमिनी को प्रॉपर चेक कर लो, और ऑलवेज आपकी वाइफ को भी कुछ सिखा दो। सिखाना बहुत जरूरी है। सी वो नहीं सिखाना है कि रिलायंस लेना चाहिए कि स्टेट बैंक लेना चाहिए, चलो वो छोड़ दो, वो नहीं सिखाना है तो, पर कम से कम आप पूरी हायरार्की कैसे बनेगी, कहां पर कैसे आपका ये जाएगा, वो आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फर्स्ट स्टोरी नंबर 1, द लर्निंग इज ऑल अबाउट इट, दैट शुड ऑलवेज बी अ प्रॉपर नॉमिनेशन एंड प्रॉपर आपका लिखा हुआ होना चाहिए कि ये फ्यूचर में पैसा कहां जाएगा। फर्स्ट। द सेकेंड स्टोरी, दैट इज द माइंड ब्लोइंग स्टोरी, बहुत पेनफुल स्टोरी था। एक घर का जो केयर टेकर था, उसे एट द एज ऑफ 43 वो एक्सपायर हो गया। घर का मेन आदमी जैसा, क्योंकि आप देखना काफी जगह पर आपके ड्राइवर ऐसा होता है, आपके घर पे जो मेड आती है 10-10 15-15 साल से आते हैं और वो घर के आदमी बन जाते हैं। और पर्टिकुलर लॉकडाउन में तो वो लोग बहुत नजदीक आ गए, बहुत नजदीक आ गए, क्योंकि घर पे कोई दूसरा रिलेटिव नहीं मिल रहा था, पर ड्राइवर रोज आपको आ रहा था, आपकी मेड रोज आ रही थी। अचानक से 43 की एज में वो बंदा एक्सपायर हो गया। अभी उनकी वाइफ की एज है 38 ईयर्स, सन 7 ईयर्स, 16 ईयर्स डॉटर। बैंक बैलेंस क्या है? जीरो। बाद में जब मालूम पड़ा, देखा तो उनका कोई 2-4 अकाउंट में लोन्स भी चल रही थी ना। वो जो जिसके घर पे काम कर रहे थे, वो बंदा जो था, वो बोले यार ये आदमी मेरे साथ 16 साल से मेरे घर पे काम कर रहा है, इसकी वाइफ और उसकी बेटी और इसके बेटे को ऐसे में पेन में नहीं देख सकता हूं, मुझे उनकी फ्यूचर की कुछ न कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। एंड व्हाट अबाउट द, बोले उसकी बेटी की शादी कैसे होगी, बच्चा अभी 7 साल का है, सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, उसका हम लोग कैसे प्लान करेंगे। सुपर पेन में वो फैमिली जिसके घर पे वो काम कर रहे थे। मालूम है, आज उन्होंने कमिट किया कि मैं पूरी जिंदगी ये फैमिली को स्पेसिफिक एक अमाउंट से सपोर्ट करूंगा। उन्होंने कमिट किया कि ये फैमिली को मैं ये फिक्स ये अमाउंट जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं देता ही रहूंगा ना। ऐसे लर्निंग क्या होते हैं, आजकल मैंने काफी जगह पर देखा हुआ है। आपको क्या करना चाहिए, ऐसी कोई जगह पर अगर आपको लग रहा है कि मेरा ड्राइवर बहुत नियर बाय है, मेरा कुक बहुत नियर बाय है, मेरा मेड बहुत नियर बाय है, 15-20 साल आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप इनके इंश्योरेंस आप ले लो अभी से। दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग, क्योंकि वो बंदा भी लाइफ टाइम फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहा है ना, इज ए ह्यूज अमाउंट। अगर उन्होंने कुछ प्रीमियम भी भर दिया होगा छोटा सा भी, तो अभी 25 लाख का इंश्योरेंस अगर मिल जाता उनको। एक चीज ध्यान में रखना कि ऐसी जो फैमिली होती है, दूसरी ऐसी फैमिली को आपको सपोर्ट करो, इनके साथ भी आप टाइम स्पेंड करो। ऐसा मत समझो यार कि ये सिर्फ काम करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए आ रहा है, रसोई। सी दे आर द नेक्स्ट टू यू। फैमिली आपको नहीं मिल रही, पर ये लोग रोज मिल रहे हैं। आप उनको समझाओ कि गवर्नमेंट योजना में उनका पहले से अब हर एक जगह पे रजिस्ट्रेशन करवा के दो। गवर्नमेंट ने ये बात ऐसे फैमिली को सुपर डुपर सपोर्ट किया है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, उनके पास आधार कार्ड नहीं होता है, उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ऐसी चीज मत करो।
इनको भी, आपकी वाइफ को, आपके बेटे को, आपके बच्चे को सिखाओ कि बेटा हमारे घर पे जो मेड आ रही है ना, उसका सब कुछ रजिस्ट्रेशन करवा लो। गवर्नमेंट की स्कीम बहुत बढ़िया हो गई है। सी, एक दिन छुट्टी रखो ना। आज ये बंदा बोल रहा है कि पूरी जिंदगी, फॉर एग्जाम्पल, वो हर महीने 10,000 रुपया देगा, अभी पूरी जिंदगी, एक साल में 1,20,000 जाएगा। इससे अच्छा एक दिन छुट्टी रख के प्रॉपर अगर प्लान कर लेता तो क्या होती। दिस इज लर्निंग, दिस इज लर्निंग। ये करना बहुत जरूरी है आपके नियर डियर वन। इंश्योरेंस ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ अपनों का ही लिया जाता है, क्योंकि अपनों की डेफिनेशन बदल गई है। आज मेरे साथ जो बंदा काम करता है, 20-20 साल से काम कर रहे लोग, क्या उसके फैमिली को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा कि नहीं नहीं अभी कोविड में तेरा हस्बैंड गया तो मैं कुछ नहीं, मेरे से बोला भी नहीं जाएगा। सो सेकंड लर्निंग, आपके अपनों का मतलब होता है आपके सराउंडेड जो छोटे छोटे लोग हैं ना, उसकी भी जिम्मेदारी तो आपके पास ही आएगी। डेफिनेटली, डेफिनेटली। आपने बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेज देखे होंगे कि प्लीज इसको सपोर्ट करो। मैंने बहुत सा, आई थिंक मुझे लगता है मई महीने में तो रोज का मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि इसको कुछ पैसे की सहाय की जरूरत है, पेटीएम नंबर है, बैंक नंबर है, पैसा शिफ्ट करो। तो क्यों ना लर्निंग ले ले, और इनके लिए भी हम लोग आज से ही कुछ कर ले। स्टोरी नंबर 3, दिस इज वंस अगेन ए कोलकाता। कोलकाता इज क्वाइट पॉपुलर फॉर द जॉइंट फैमिली। दिस इज द वर्स्ट पार्ट आई हैव सीन। सी, जॉइंट फैमिली में क्या होता है, एक बंदा जो होता है ना, 50-50 लोगों का फैमिली होता है, 40-40 लोगों का फैमिली होता है, बराबर है। तो घर का जो मेन आदमी होता है ना, कोई एक बंदा मेन होता है, जो ही इज अ होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके सामने कोई बोल नहीं सकते। वो नरेंद्र मोदी जैसा होता है कि भाई वो ईच एंड एवरीथिंग, वही फाइनल अथॉरिटी। ना हुआ क्या, दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं कोई भी ज्वाइंट फैमिली में। आज के बच्चों को नहीं मालूम होगा ज्वाइंट फैमिली क्या होता है, बिकॉज नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक होता है फैमिली का और एक होता है खुद का। ना, ये जब घर के मेन आदमी को हो गया, और उसके बाद जब डीमेट के स्टेटमेंट निकले, म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट निकले, इंश्योरेंस की पॉलिसी निकली, वन एक भी जगह पर अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें फैमिली का पैसा कौन सा है और इसमें इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल फैमिली के, क्योंकि अभी तो सबके बच्चे भी बड़े हो गए। अभी कोई बोल रहा है कि ये ज्वाइंट फैमिली का है। नो डाउट दीज आर द गुड कल्चर फैमिली। तो झगड़ा जैसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट सेइंग झगड़ा है, मारा मारी ऐसा नहीं है, लीगल भी कुछ नहीं है। बट द मोस्ट पेनफुल थिंग कि 50 साल से जो बंदे ने ये घर को मजबूत पकड़ के रखा था, अगर पहले दिन से सब शेयरिंग कर देते ना, तो जो ये मन में कुछ भी डाउट होता है ना, जो पेन होती है ना, वो कभी भी नहीं आएगी। काफी बार ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि फैमिली के बीच में फिर चाइनीज वॉल बन जाती है एक छोटी सी चीज के लिए। अब पहले दिन से, आज से, अभी भी मुझे पक्का मालूम है, आपको लगता होगा कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, दूसरों के साथ होगा, मेरे फैमिली में तो सब समझदारी है। दीज आर द कॉमन थिंग, ये कॉमन है। मैंने 26 साल निकाला है बाजार में बॉस, यानी आर्ग्यूमेंट ये सब मेरे सामने रखना भी ना, मेरे फैमिली को कुछ नहीं होगा, मेरे फैमिली में सब समझदार है। सर वो आपका मानना है, बाकी के 40 लोगों का क्या मानना है आपने कभी पेपर पे पूछा है? और वो जो दिन आप नहीं रहोगे वो दिन ये प्रॉब्लम आएगी। सो फर्स्ट रिक्वेस्ट, डिवाइड योर एंटायर थिंग, प्रॉपर प्लानिंग करके उसको डिस्क्लोज कर दो, सबको इंटीमेट कर दो कि दीज आर द पोजीशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम स्टोरी नंबर 3। स्टोरी नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई थिंक इट्स नॉट इंटरेस्टिंग, इट्स द वर्स्ट एंड द मोस्ट पेनफुल। ये मीटिंग करते हुए तो मेरी आंख में से आंसू निकल गए थे, इतना पेनफुल ये स्टोरी था। घर में 4 लोग, हस्बैंड की एज, दैट इज ऑल अबाउट ए बैंकर, हस्बैंड की एज 48 इयर्स, डाइड इन अ कोविड। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, उनका बेटी की उम्र है, एक बेटा जो है उनकी उम्र है 2 साल की, बेटे की उम्र है 2 साल की और बेटी की उम्र है 8 साल की। वाइफ की उम्र है, दैट इज ऑल अबाउट 37 इयर्स। यहां पर पेन कहां पर आया, उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, एक चीज निकली और वो थी इंश्योरेंस, और 2 करोड़ का उनका इंश्योरेंस आ गया। नाउ जब 2 करोड़ का इंश्योरेंस तो आ गया, 2 करोड़ का इंश्योरेंस आ गया, तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस एक ही अमाउंट है, बाकी उनके पास अभी कुछ नहीं है।
और ये जो बंदा एक्सपायर हो गया, उसके फादर और मदर भी इसके ऊपर ही डिपेंडेंट थे। तो अभी घर में कितने हो लगे, फादर मदर, जो गांव में रहते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, और दो छोटे छोटे बच्चे, 37 इयर्स की वाइफ अकेली, उसको अभी 4 लोगों का जिम्मेदारी है। वो इतनी डर गई कि मेरे पास अभी जो बैंक में 2 करोड़ रुपया आए हैं, और आपको मालूम है ना, बैंक में 2 करोड़ रुपया की क्रेडिट एंट्री आएगी तो फिर कितने कॉल आएंगे आपको। वो इतनी पेन में थी कि मेरे पास अभी लास्ट सोर्स से ये 2 करोड़ भी चले गए तो मेरा पूरा 5 लोगों का फैमिली बर्बाद हो जाएगा। मैं 2 बच्चों को और 2 बूढ़े माँ बाप को कैसे मैनेज करूंगी। वो रात रात सो नहीं रही थी। वो मेरे पास कनेक्ट किया बाद में, जब हम लोग वीडियो कॉल पे भी मिले थे, उसके बाद तो पर्सनली भी मिल लिया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो जो पेन देखो ने, सी एक लर्निंग सबसे बड़ा क्या रहा कि आप इंश्योरेंस खरीदते हो ने, तो इंश्योरेंस के पैसे को फ्यूचर में कैसे मैनेज करना है ना, वो भी कुछ सिखाओ अभी। और ये करना पड़ेगा आपको। सिर्फ आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो पैसा कमाने में और डबल करने में लगा हूं। सिर्फ डबल कितना करोगे जिंदगी को, जिंदगी में कितना डबल करोगे। कुछ तो फैमिली का सोचो, वाइफ 1 महीने से सो नहीं रही है और उसको डर है कि कोई मेरा 2 करोड़ गलत जगह पे डाल दिया तो मेरा क्या होगा। वो सो नहीं रही, उसको लगता है कि पक्का मेरे साथ कोई फ्रॉड कर लेगा। क्योंकि जब घर का आदमी चला जाता है ना, तो आपके थॉट्स नेगेटिव ही आता है। ऑफकोर्स कुछ नहीं होगा, उसको 2 करोड़ को कोई ले नहीं जाएगा। बट जब आपके साथ ऐसी दुर्घटना होती है ना, तब आपको ये बहुत सारे नेगेटिव न्यूज आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ए स्टोरी 4। स्टोरी 5 ना, मुंबई में 3 बिजनेस पार्टनर थे। 3 बिजनेस पार्टनर थे आपका, दैट इज ऑल इनटू, उनका ऑफिस था इन अ अंधेरी एरिया। 3 बिजनेस पार्टनर थे। लोगों को लर्निंग क्या मिल रहा है, सुपर डुपर जा रहे थे, सब यंग एकदम एंटरप्रेन्योर। अचानक से उसमें से एक कोविड पार्टनर की डेथ हो गई, कोविड की वजह से, एट एज ऑफ 41। मालूम है इतना सुपर बिजनेस चल रहा है ना। मोस्ट सीरियस मैटर आज क्या आ गई है कि अभी ये धंधे में से तीनों इक्वल पार्टनर, अभी धंधे में से जो बंदा चला गया उनको क्या मिलेगा, उसका सुपर डुपर डिस्प्यूट। सी आप क्यों सब कुछ कर रहे हो, फाइनली कमाना दैट इज नॉट द फाइनल गेम। आपके नहीं होने के बाद, होप मेरे आप जो स्टोरी है, ऑफ कोर्स ये स्टोरी नहीं है, दीज आर द पेनफुल स्टोरी जिसको मैं जब मिलता हूं। ये बंदे में मुंबई हर 2 दिन में हमें एक बार उनके साथ जूम मीटिंग करना पड़ रहा है। इतना डिस्प्यूट अभी चल रहा है, इतना डिस्प्यूट अभी चल रहा है। एक छोटी सी चीज है। सी आप समझो कि आपके सीए है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनको भी जिंदगी में आप रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दो भाई, जरूरत है इनकी। अब ऐसा मत बोलो कि सीए यार मेरे पास टैक्सी भरवाता रहता है, फाइनेंशियल एडवाइजर है उसका कोई भरोसा नहीं है, बाजार टूट जाता है ना तो दिखता ही नहीं है। डोंट डू दिस। आप जितनी अच्छी प्लानिंग करोगे बेनिफिट आपका बनेगा। स्टोरी नंबर 6, ये भी जानना सुपर डुपर जरूरी है। मुझे लगता है आज सुनने वाले में बहुत सारे लोग रहेंगे। हस्बैंड ने एज था 70 इयर्स, 70 साल का, 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या मालूम है, ये पोर्टफोलियो उन्होंने इनकम टैक्स में अभी तक दिखाया नहीं है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 25-30 साल पहले का। पर एक भी बार वो क्या करते हैं, डिविडेंड इनकम भी सुपर डुपर है। अब क्योंकि 3 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया है, तो अभी डिविडेंड इनकम पर आज तक इनकम टैक्स में दिखाया नहीं है। हर साल जब भी उनको मिलो ने, तो वो क्या बात करते थे, ये साल है ने कोई अच्छे सीए को, एडवाइजर को मिलकर इसका प्लानिंग करना है, सब ऑफिशियल कर देना है। वापिस दूसरे साल, ये साल है ना बैठ के अपने कोई मार्च तक ये खत्म करना ही है। तीसरे साल, ये साल तो मार्च में पक्का हो जाएगा। 2011 से ये चीज चल रही थी। फाइनली विद इन 2 डेज वो एक्सपायर हो गए। और जाते जाते मालूम है उन्होंने एडवाइजर को क्या व्हाट्सएप किया है, प्लीज वो जो मेरा अकाउंट है ना अच्छे से चार्टर्ड अकाउंट को दिखाने और मेरी वाइफ को पूरा पूरा पिक्चर उनको हेल्प करना। दैट इज द लास्ट व्हाट्सएप मैसेज। क्या पेनफुल है ये, दिखाना नहीं दिखाना, ये कब तक करते रहेंगे पूरी जिंदगी में। जो भी है सब कुछ क्लियर कर लो, क्योंकि आप ये कर पाओगे, आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन, आपकी वाइफ, आपके बच्चों को ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टोरी नंबर 6।
7 नंबर पे आते हैं, नाउ दिस इज वंस अगेन ए सीरियस मैटर। ये देखो मेरे नजर के सामने हुआ है और ये सब मैं उनके साथ टच में हूं, रोज मुझे इनके साथ, अभी मेरा टाइम यहां पर ज्यादा जा रहा है टू सेटल डाउन द एवरीथिंग। सीनियर सिटीजन हस्बैंड वाइफ, ना हुआ क्या, हस्बैंड ने अच्छी तरह से प्लान करके रखी थी, हस्बैंड स्मार्ट थे, ये जब अंकल एक्सपायर हो गए एट एज ऑफ 64, बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने क्या किया था, म्यूचुअल फंड में परफेक्ट एलोकेशन करके पोर्टफोलियो बनाया था और उन्होंने डेट फंड, बैलेंस एडवांटेज ऐसी कैटेगरी में रखा था। इवन उनका प्लानिंग भी ऐसा था कि जब पैसों की जरूरत आएगी तो मैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कर लूंगा, वो उनकी प्लानिंग भी थी, वो भी एक क्लियर पिक्चर था। बट सबसे सीरियस मैटर क्या है कि जब एक्सपायर हो गया, अभी लुक एट द सीरियस मैटर, उन्होंने जो करके रखा था ना, एडवाइजर का प्लानिंग भी सही था, उनका भी प्लानिंग, दोनों का प्लानिंग में कोई डाउट नहीं था। बट मैटर क्या थी, कभी भी उन्होंने ये बात अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं की थी और अचानक एक दिन कोविड की वजह से ही एक्सपायर्ड एट एज ऑफ 64। उनकी वाइफ की उम्र 60 साल ना। मालूम है प्रॉब्लम क्या है हमारे सोसाइटी में, आजू बाजू अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई रहता है, दोस्त रहता है, वो क्या बोल रहे थे, देखो है अभी ये सब म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में अभी ये कुछ पैसा रखो ही मत, पूरा पैसा निकाल दो, आज का निकाल दो, वो कोई टेंशन नहीं चाहिए, वो कौन सी स्कीम में डाल दिया होगा, आपका पैसा डूब जाएगा, आपकी फाइनल अमाउंट ये है। वो वाइफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं, नेक्स्ट डे बोले आज का मेरा पैसा इंडिया की जानी मानी पब्लिक सेक्टर बैंक में ट्रांसफर कर दो, और पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया। और मालूम है बाद में 15 दिन के बाद क्या हुआ है, उसमें से मेजॉरिटी पैसा ऐसी इंश्योरेंस स्कीम में पीएसयू बैंक में से चले गए कि जहां पर वो सब पैसा उनको काम में नहीं आएगा। सी दीज आर द मैटर ऑफ ओनली मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बार भी अगर वो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोल दिया होता कि मैंने पूरी जिंदगी के लिए हमारे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की प्लानिंग करके रखी है, तू डरना ही मत, तुझे घर चलाने के लिए जो 15-25 हजार चाहिए वो तो कल से आपके डिस्ट्रीब्यूटर को बोल देना, घर पे भेज देगा, वो आपकी बैंक में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। सी दिस इज द पेनफुल थिंग कि पैसा होने का बाद भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर्टेन एज आप एक वंस यू क्रॉस, ये भी पूरा कर लो। 8, दिस इज ऑल अबाउट ए वन मोर इंटरेस्टिंग केस स्टडी। और आई थिंक किसी ने, कोई मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था, काफी मुझे लगता है महिला ही भी समझदार हो रही है। मैंने क्वेश्चन जब रीड किया था तो मैंने अच्छी तरह से सुना था कि एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ सीनियर सिटीजन, एक बेटा कैलिफोर्निया में और एक बेटा, ये हैदराबाद नोएडा भी नहीं है आपका, द मोस्ट इंपोर्टेंट, हाँ ये केस स्टडी तो काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, कैलिफोर्निया वाला बाद में सुनाता हूं, ये सुन लो, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हो गया। अच्छे पैसे थे, फादर एक्सपायर एट 55, बट उन्होंने क्या करके रखा, दोनों बच्चे ने सुपर डुपर पढ़ लिख लिए, एक नोएडा में चला गया और बेटी हैदराबाद चली गई, अच्छे पढ़ रहे थे दोनों, और एजुकेशन के बाद उनकी जॉब भी अच्छी लग गई। अभी जो फादर एक्सपायर हो गए, फादर ने क्या किया था, पूरे सब जगह पर उन्होंने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लेकर बैठे थे और उन्होंने वो रेंटेड इनकम बनाई थी। और रियल एस्टेट में भी उन्होंने तकरीबन, उनके पास 12 ऑफिसेस है जो उन्होंने रेंट पर देकर रखी। और सबसे सीरियस प्रॉब्लम कहां पर, पेनफुल चीज, कि 12 में से उन्होंने हर बार किसी न किसी के साथ पार्टनरशिप में लिया था। बोले ये दोस्त के साथ ये ऑफिस ले लो, रेंट पे लगा दो, ये ऑफिस ले लो, रेंट पे लगा दो। आज जब उनको 25 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, कुछ भी नहीं हुआ, फाइनली डाइड, और आज समझ में नहीं आ रहा कि 12 प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन कहां से आएगा। और प्रॉपर्टी का सबसे सीरियस मैटर क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ में खरीदा है, तो वहां पे कुछ कैश भी आपने 50 लाख दिया होगा और 50 लाख चेक दिया होगा, तो अभी एंट्री कौन सी आपके पास, सिर्फ 50 लाख की। सी उन्होंने तकरीबन 6 लोगों के साथ अलग अलग प्रॉपर्टी में टाइप करके रखा था। आप बोलो, ये क्लाइंट अपने बच्चों को क्या बोल रहा था मालूम है, बेटा जिंदगी में डरना मत है, अपना रेंटेड इनकम सुपर डुपर है, तू नहीं भी कमाएगा ना तो अभी तू शांति से जिएगा। बेटा शांति से जी नहीं रहा है, बेटा ढूंढने में लगा है, अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो गया कि 12 चीज को मुझे संभालनी पड़ेगी। सी ये सब प्लानिंग करो कि आपकी फ्यूचर जनरेशन व्हाट दे वांट।
पेपर एसेट या तो ऐसी एसेट में जाओ कि जहां पर उनको समझ में आए। मैंने पर्टिकुलर कैश, रियल एस्टेट और गोल्ड का मेजर प्रॉब्लम देखा है। काफी लोगों को मालूम ही नहीं है कि फैमिली को इतना मालूम है कि पापा ने सिल्वर खरीद के रखा है, बट कहां खरीद के रखा है ना आज मालूम नहीं है। दिस इज द वन मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी नंबर 9। दिस इज द मोस्ट सीरियस, क्योंकि इसमें तो मैं काफी कुछ इन्वॉल्व रहा था। 5 करोड़ का डीमैट अकाउंट, 70 इयर्स का अंकल अचानक ही एक्सपायर्ड। बेटी उनकी नोएडा में रहती है, बेटा उनका कैलिफोर्निया में रहता है। दोनों आ नहीं पाए जब उनको हुआ ये चीज, तो दोनों आ नहीं पाए क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल करना तब एक्सट्रीम लॉकडाउन की सिचुएशन थी। मालूम है आज उनके वहां झगड़ा कौन सा चल रहा है? बेटी बोल रही है कि अगर पापा के ये 5.5 करोड़ के डीमैट अकाउंट में, बेटी को लग रहा है कि पक्का मेरा भाई ये 5.5 करोड़ का शेयर्स ले लेगा, और दोनों अमीर है बाय द वे, वो भी मैं मैसेज दे दूं, दोनों अमीर है। बेटे को लग रहा है कि पक्का बेटी जो है ना वो इंडिया में है, तो वो पुणे में मम्मा के पास से ये अच्छी तरह से ले ही लेंगे। आज लिटरली ये दोनों, सी पेनफुल थिंग, बेटा वो स्टॉक ब्रोकर को मेल करता है कि मेरी बहन अगर डीमेट स्टेटमेंट लेकर लेने आए ना तो देना ही मत। वाई जब बेटी भी मेल डालती है कि मेरा भाई अगर कोई भी एक्शन देने करना मत, दोनों मम्मी के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि मम्मी तू मेरे साथ रहने आ जा, तो फिर हम लोग इसका प्रॉपर प्लान कर देंगे। नाउ दिस इज द, और ये इतना बेस्ट फैमिली है, आप सोच नहीं सकते कि ये फैमिली में ऐसा हो सकता है। सिर्फ आपके बच्चे के साथ अभी बैठे होंगे, काफी लोग अपने भाई बहन भी बैठे होंगे। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि आप दोनों के बीच में मनमेल नहीं है, दैट इज नॉट माय मैसेज, पर माय ओनली थिंग इज कि व्हाई नॉट ये क्लैरिटी क्यों नहीं करना है कि किसके पास रहेगा। एक छोटा सा व्हील, अगर मैं तो बोलता हूं कि पापा ने अगर बैठ के एक बार डिस्कशन भी कर लिया होता कि बेटी को 50% मिल जाएगा, बेटी को भी 50% मिल जाएगा, फाइनल थिंग, या तो जब तक मम्मा है तब तक कुछ नहीं मिलेगा, इतना छोटी चीज भी लिख कर जाते हैं। एक मैम ने बहुत अच्छा पूछा था कि क्या हम लोग प्लेन पेपर पर विल करते, दैट इज अ लीगली अलाउड? नो, डेफिनेटली नहीं, पर इमोशनल मैटर इसकी रहती है। और ज्यादातर केस जो मैं दिखा रहा हूं उसमें लीगल कुछ नहीं होने वाला है। दीज आर द पेन ऑन ए रिलेशनशिप, दीज आर द पेन इन अ रिलेशनशिप। तो अगर कुछ लिख के भी जाते हो, आप डिस्कशन भी कर लेते हो, तो डेफिनेटली 80% तो अपने केस क्लियर हो ही जाएंगे। और इवन आजकल तो ऑफिशियल विल लिखना इट्स नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। आपके जो भी भाई साहब ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया उनको आप कनेक्ट कर लेना। आपको जो भी लोगों ने इन्वाइट किया है ना, हम लोग मिलकर एक पूरे इंडिया में नेक्स्ट बिग थिंग करके एक अवेयरनेस का कैंपेन कर रहे हैं। आपको जो भी भाई साहब ने यहाँ पर इनवाइट किया हुआ है, हम सब मिलकर इंडिया में ऐसे 350 लोग हैं, हम मिलकर एक कैंपेन कर रहे थे। हमारा मकसद है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन देना, आप उनके साथ बैठना और उनके साथ ये सब केस स्टडीज के बारे में आराम से डिस्कशन कर लेना। सो फाइनली द लास्ट स्टोरी, जयपुर का केस। A very young couple, one daughter, husband, now this is, oh my god, ये तो स्टोरी सुन के मैं हिल गया था। 38 years हस्बैंड का, 35 साल वाइफ एक्सपायर। आपको मालूम है ये जॉब कर रहा था बंदा, क्रेडिट कार्ड पिन नंबर नो आइडिया, डेबिट कार्ड पिन नंबर नो आइडिया, ईमेल आईडी नो आइडिया, एक भी चीज का पासवर्ड ही नहीं, इंक्लूडिंग चेकबुक कहां रखा है, इंश्योरेंस कहां पे रखा है, म्यूचुअल फंड, नॉट ए सिंगल लॉग इन डिटेल। और आप ये ध्यान में रखना कि ये बार का लॉकडाउन कैसा था कि आदमी जब एक्सपायर हो जाते थे उसके आजू बाजू में कोई था ही नहीं, बस वो 15 दिन। और बैंक में भी जो एक अकाउंट रखा था ने वो ज्वाइंट सिग्नेचर वाला था, ज्वाइंट सिग्नेचर, वो भी इधर और सर्वाइव वाला नहीं था कि वो एक साइन से भी काम हो जाता। 15-25 दिन। और आप देखो लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकते थे, बैंक वाले बोले आपको आना ही पड़ेगा। आज की तारीख में इनका तो अभी आई थिंक 2.5 महीना हो गया, अभी भी ढूंढ रहे कि इंश्योरेंस कहां पे खरीदा था, म्यूचुअल फंड कहां पे खरीदा था, स्टॉक का अकाउंट कहां पे, कुछ नहीं मालूम है। अब देखो बॉस, जब 35 साल में लड़की अकेली हो जाती है, उसका हस्बैंड चला जाता है, बाजू में उसकी बेटी बैठती है, और पैसा, आई एम नॉट सेइंग कि
कोई प्रॉब्लम आएगा, वो अपने फादर के पास, अपने रिलेटिव के पास से भी पैसा 25,000 मांग सकती है। बट वाई? आप इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे, इतने डिजिटल युग का आपको एकदम एक नंबर का आपको एक प्राउड है कि वी आर लिविंग इन अ डिजिटल युग। आप प्राउड से बोल सकते हो कि मैं योगा करता हूं ऑनलाइन, तो क्या प्राउड से ऐसा नहीं बोल सकते हो कि वाइफ को वो योगा करने का पासवर्ड भी मालूम होना चाहिए? इतनी भी समझदारी नहीं है हमारे पास। और ये समझदारी क्यों नहीं है? ये एक ईगो है हमारे अंदर। और ये ईगो कौन सा है? ईगो एक ही चीज का है कि सबको होगा, मुझे नहीं होगा। ये 10 स्टोरी सुनने के बाद भी मैं 100% बोल रहा हूं कि मेजॉरिटी लोगों को लगेगा चलो हो गया तो हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमारा तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्या करोगे पैसे का? अगर पैसा मन की खुशी नहीं दे रहा है, आपने 25%, 20%, 15% बाजार से पैसा बनाया भी ना, अभी क्या करोगे? अगर आपकी वाइफ को, आपके बेटे को, आपकी बेटी को 1 महीने तक अगर अकाउंट समझ में नहीं आता है, और वो 1 महीना निकालना है, ये कैसे निकलता है ना 1 महीना, वो मैंने देखा है। ये 10 लोगों का जो पहले 15 दिन है ना, मैंने देखा है। ये 10 लोगों का पहले 3 महीना है ना, मैंने देखा है। आदमी गया, उसका पेन है ना, उससे भी वर्स्ट सिचुएशन में वो लोग अभी है, वर्स्ट सिचुएशन में, क्योंकि उनको आगे की 30-40 साल दिखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। होप मेरी अगर कोई भी चीज आपको अच्छी नहीं लगी है तो मैं आपके हाथ जोड़ से माफी मांग लेता हूं। बट प्लीज आने वाले 15-25 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट पैटर्न को इंप्रूव करो। अगर मैं कोई समरी लर्निंग का बनाने चाहता हूं, आज अगर घर पे बैठे हो, हाँ बेस्ट समरी, आपको ये पक्का अच्छा नहीं लगेगा बट दिस इज द बेस्ट थिंग मैं आपको बोलना चाहता हूं। जिंदगी में क्या करो मालूम है? कुछ मत करो। ऑलवेज, आज तक मैंने देखा है कि एडवाइजर की ऑफिस में आप लोग जाते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो, शेयर ब्रोकर के पास जाते हो, मैं तो बोलता हूं ना, साल में एक बार आपका जो भी इंश्योरेंस एजेंट है, म्यूचुअल फंड एजेंट है, या तो शेयर ब्रोकर है, उसको आपके घर पे खाने के लिए बुलाओ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस फ्रॉम माई साइड। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो। क्योंकि आपके बच्चों को अगर इनके साथ जान पहचान करवा दी ना, जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि क्या है ना, वो जो एडवाइजर आपके सामने बैठ के भी गया होगा ना, उसको भी 2 आंख की शर्म आएगी कि अभी भाई साहब नहीं रहे, भाभी जी, बच्चों को, उनके पेरेंट्स का ध्यान रखना मेरा जिम्मेदारी बनता है। और ये एथिक्स, ये प्रिंसिपल आज भी इंडिया के जाने माने जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइजर, सब ब्रोकर है, उनके पास है। पर आपको कभी इनकी अहमियत लगी नहीं है। मुझे तो 2 चीज समझ में आई कि मैं साल में एक बार मेरे फैमिली डॉक्टर को घर पे बुलाऊंगा खाने के लिए, और मेरे एक जो एडवाइजर है उनको भी खाने के लिए घर पे बुलाऊंगा। सी दीज आर द नॉर्मल थिंग। क्योंकि बच्चा जान जाएगा, सी घर पे आते हैं ना, तो आपकी बेटी पूछेगी आपको, पापा कौन आ रहा है खाने पे लिए, तो आप बोलोगे कि बेटा हमारा जो फाइनेंस मैनेज करता। ये कल्चर नहीं है हमारे पास, क्योंकि आज तक हमने क्या सीखा है कि मेरा पैसा है, वो तो सिर्फ ठीक है, उसको ऑर्डर देता हूं, वो कर देता है। डोंट डू दिस माय डियर फ्रेंड। रिलेशंस गिव्स यू लॉट ऑफ सुख शांति कंपेयर टू समृद्धि। इतना पैसा बनाने, और जब भी आज अगर फ्री हो जाते हो, आज मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही है, तो एक काम करना, मैं एक चार्ट दे रहा हूं, उसके ऊपर लिख देना। आपकी जॉब में जो भी चल रहा है पेपर पर लिख लो। आपके बिजनेस के जो भी अरेंजमेंट है पेपर पर लिख लो। आपने बेसिक नीड या लाइफस्टाइल के लिए कोई भी ईएमआई रखा है, लिख लो। सिंपल सी चीज मैं बोल रहा हूं, ये पेपर का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो। फाइनली इट्स ऑल अबाउट आपका एफडी कहां है, लिख लो। आपकी गोल्ड कहां पर रखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, वो अभी आज बताओ, आज अभी बताओ। वो भी मत सोचना कल करेंगे, परसों करेंगे। वही लोगों का 10 केस स्टडी बना है परसों करने में ही। अभी भी नहीं समझे, संभल जाओ या गिर जाओ। मेरा ऐसा मानना है कि आज के प्रोग्राम के बाद आप संभल जाओगे। ये लिख लो। और फाइनली आपने रियल एस्टेट क्या क्या खरीद के रखा है, इक्विटी में आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, आपने इंश्योरेंस खरीदा है, जो भी कुछ खरीदा है, आपने पीएमएस खरीदा है, सब चीज आप लिख लो। क्या बढ़ा है ने वो मत सिखाने जाओ कि 15% से बढ़ गया, चलेगा। बट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज ऑल अबाउट
ये लिख लो। और सिर्फ मुझे तो मेरे बिजनेस के लिए प्राउड मैटर इसलिए हो रहा है कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक, ये सब चीज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये सब चीज में आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर डाल दिया तो पूरा डिटेल मिल जाता है। दैट इज द रीजन आई लव अ पेपर एसेट, कि मैंने कभी गलती से नहीं भी बताया तो अभी मेरे लिए दिक्कत नहीं होगी। बट ये चार्ट बनने के बाद अगर आपने एक लंच या डिनर कर लिया है आपके एडवाइजर के साथ, तो आपकी, फॉर एग्जांपल, आपकी उम्र है आज 70 ईयर्स की, बराबर है, और आपकी वाइफ है 65 साल की, तो ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप चाय के लिए आपके एडवाइजर को घर पे बुला लो चाय पीने के लिए, और आपकी वाइफ को बाजू में जरूर बिठाना और कोई भी चर्चा कर लेना। पर उससे क्या होगा, 65 साल की वाइफ को भी समझ में आएगा कि चल, ये नहीं रहेंगे तो ये भाई साहब मुझे कुछ न कुछ अच्छी गाइड करेंगे। और ये 100% पॉसिबल है आज के इंडिया में भी। और ये संभलना आपने नहीं सीखा तो मुझे लगता है दिस इज ऑल अबाउट ए एंड ऑफ द जर्नी। वाइज आर द वंस हु लर्न फ्रॉम द लेसन्स ऑफ अदर। होप मेरी सुनने वाली जो भी ऑडियंस है वो अपनी सोच के साथ, अपनी शान के साथ, फैमिली के साथ लूडो खेलते हो ना, तो फैमिली के साथ फाइनेंशियल मैटर को भी शेयर करोगे। जितनी प्लानिंग करनी है, कल सुबह जाके नॉमिनी चेक करना है कर लो। जितनी, मैंने 10 केस बनाए ना, 10 के 10 आपके साथ कहीं ना कहीं लिंक कर रहे हैं, उसको पहले इंप्रूव कर दो। आपके जो भी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है, आपकी जो भी फ्यूचर की प्लानिंग है, वेल्थ प्रिजर्वेशन, वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों चीज को लिख लेना। यही आज के समय की समझदारी है। कोविड एक घटना थी, कोविड एक पेन था, कोविड एक हिस्ट्री भी बन जाएगा, बट यहां से हमें कोई लर्निंग हमने नहीं लिया, हमारे आने वाली जनरेशन को हमने नहीं सिखाया, तो आने वाले समय में भी इससे और कोई ज्यादा प्रॉब्लम में वो लोग जा सकते। और क्यों ऐसी प्रॉब्लम देना है? बच्चों को सुख शांति देना, फैमिली को सुख शांति देने के लिए आप रोज सुबह जॉब पे जा रहे हो, आप फैमिली को सुख शांति देने के लिए रोज बिजनेस में जाते हो, और वही बिजनेस अगर आपके फैमिली को पेन दे रहा है पहले 3 महीने के लिए, देन लाइफ इज नो मीनिंग, लाइफ इज नो मीनिंग। So this is all from my side. Thank you very much for your valuable time on a Sunday morning. वापिस मैं एक बार आप लोगों के साथ हाथ जोड़ के एक बार माफी मांग लेता हूं। अगर मेरी कोई भी बात अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज आप वो चीज को आपके मन में से निकाल देना। मेरा इंटेंशन सिर्फ एक छोटा सा इंटेंशन है कि क्यों नहीं हम ज्यादा से ज्यादा सुख, शांति और समृद्धि के बारे में आगे बढ़े। ये बार हमने क्या सीखा कि लोगों को हमें पैसे से भी हेल्प करनी पड़ेगी, हमें गिविंग का भी मीनिंग समझ में आता है। मैं तो बोल रहा हूं अगर आपके पास पैसे है अच्छे, तो आपके बच्चों को, आपके नेक्स्ट जनरेशन को गिविंग भी सिखाओ। आप उनको बाजार सिखाते हो, आप उनको म्यूचुअल फंड सिखाते हो, आप उनको स्टॉक सिखाते हो, तो क्यों नहीं पैसा देने का भी सिखा रहे हो। जरूरतमंद लोगों को कैसे सहाय की जाती है वो भी सिखाना कोविड ने हमें एक बहुत बड़ा लर्निंग दिया है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने आपके पास 50 मिनट का समय मांगा था, पर देखते देखते 60 मिनट हो गया है। होप मैंने आज मेरे मन में जो भी था, मुझे एक बार तो बोलना था, कुछ भी करो जिंदगी में, कितनी बार वही बोलता रहूंगा कि जीडीपी 3 ट्रिलियन का 6 ट्रिलियन हो जाएगा, मार्केट कैप 3 ट्रिलियन का 7 ट्रिलियन हो जाएगा। जिंदगी में कितनी बार ये बोलूंगा मैं, कितनी बार। अभी मुझे लगता है कि मेरी लिमिट आ चुकी है। नाउ दिस इज द टाइम कि वी हैव टू फोकस ऑन अ प्लानिंग। प्लानिंग करेगा वही पीसफुल लाइफ या पीसफुल डेथ में रहेगा। यही मेरा छोटा सा लर्निंग है। थैंक यू वेरी मच। लवीना, इफ एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, तो मैं कुछ ले सकता हूं अदर देन मार्केट।